ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 14 ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗਤਨਾ ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ ਉਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਦੇ ਮੋਹ ਇਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋ ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੈ ਤਿਨਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ ਜਦ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਿਸਾਖ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ 1469 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ 1699 ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ 230 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਖਾਸ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1699 ਉਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਉਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਸੰਤਨ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ,
संत जना भाव वो सच दे नाल मिल के पाया जा सकता। पूरी टैक्नीक दसी थी, चेत का महीना बसंत का महीना किवें बनता है, किवें उस सर्दी गर्मी का सुमेल, और किस तरह एक चेत का बसंत का महीना किस तरह खेड़ा होंदा है, हर पासे हरियावल और हर पासे खेड़े की जिहड़ी रुत है वो बसंत की रुत है। ये उहदा जिक्र असीं पिछले महीने कीता। हुण अगले महीने जदों आंदे ने, कहते हैं विसाख का महीना, जो असीं इहनूं विसाख नूं असीं पढ़ांगे ना, तो वैसाख का मतलब होंदा है, वह का मतलब होंदा है बिना, साख होंदी है जो एक शाखा, शाखा तो बिना। हुण जिहड़ी शाखा तो बिना, एक तो होंदा संत जना मिल पाई है, जिहड़ा मिल के रहेगा पाएगा वो, ते जिहड़ी शाखा मूल तो कट्टी होए, शाखा होए। हुण कोई बंदा उन्होंने ऐस पर पूछे कि जी किसी पेड़ नूं वधण फुलण वास्ते की जरूरत होती है, तो उन्होंने दूसरा बंदा आराम नाल दसदा, कहंदा बड़ी सौखी जी गल, उन्होंने खाद और पानी चाहिए। यही कहा जाता खाद पानी चाहिए, पेड़ नूं खाद पानी ठीक टाइम ते मिले, वधा फुलदा। हुण जे कोई एक टाणी नूं खाद भी पाए, उहदे ते पानी भी पाए, रेगूलर पाए, तो पर देखी जाए दिन ब दिन सुकदी जाती भी है। उन्होंने पूछेगा भी मैं खाद भी टाइम से दे रहा, पानी भी रोज़ पाँदा, बाल्टी ते बाल्टियां भर के पाँदा, ये सुकदी जाती भी है। वो आगे देखता कहता है तो मूल तो ही वड्डी हुई भी है, तो टुट्टी हुई शाखा नूं जिन्ना मर्जी पानी देई जा, जिन्नी मर्जी खाद पा, उहदे ते कोई असर नहीं होना। उन्होंने चैन, उन्होंने धीरज नहीं आ सकता। कहते वैसाख धीरन क्यों वाढिया, जिन्ना प्रेम विछो। जिहड़े प्रेम तो विछड़े हुए ना, उन्होंने भावें जिन्ना मर्जी कुछ कर दो, वो अंदर वो धीरज नहीं आ सकता। धीरज की परिभाषा तो सानू बड़ी पहले गुरु नानक साहब ने दसी है, जत पहारा धीरज सुनियार ऐन नमत वेद हथियार। वो गल धीरज की करते हैं। धीरज बड़ा वड्डा गुण है। जिन्हों के अंदर धीरज नहीं है, वो बड़ी बेचैनी जी ना हर वक्त अंदर पई रही जब तक धीरज ना हो। क्वेश्चन सी ना, कवन सो अखर कवन गुण, कवन सो मणिया मंत, कवन सो वेसो हो करी जिस वस आवे कंत। कहते निवण सो अखर खवन गुण जेवा बणिया मंत। वो खवन गुण जो ना धीरज है। ये त्रै भेड़ा वेस कर ता वस आवे कंत। सो धीरज जो ना बड़ा वड्डा एक गुण है। लेकिन प्रेम की जी घाट है ना अंदरों, वो प्रेम की घाट भावें वो मूल तो टुटिया होया ना, जड़ा मूल तो टुट के उस तो बाद जिन्ना मर्जी उन्होंने असी जो अंदर की गल करांगे, ये सारी बाहर की रुत की गल एक संकेत है, लेकिन है अंदर की गल। जोबन जाते ना डरना जेसो प्रीत न जाए, किंती जोबन प्रीत के बिन सुक गए को मिलाए। प्रीत प्यार के बिना सुके हुए। सो ए बड़ी अंदर की जो गल करांगे ना, उदों पता लगता है कि भावें बाहर बसंत चढ़िया होए, हरियावल की रुत होए, लेकिन कट्टी हुई शाखा के उत्ते कभी भी हरियावल नहीं आती। भावें सारा बाग खिड़िया हो, कट्टी एक टाणी पई होए, उहदे ते कभी भी हरियावल नहीं। सेम इस तरह अंदर की जो गल करांगे ना, कि बाहर दे सुख आराम लग्जरी फैसिलिटी जितनी अंदर मर्जी हो, जे अंदर खेड़ा नहीं है ना, सब बेकार। बाहर जिन्नी मर्जी खाद पानी पाई, अंदर मूल नाल ना जुड़िया है ना, जिन्नी मर्जी लग्जरी ले लीए, जिन्नी मर्जी फैसिलिटी ले लीए, जिन्ने मर्जी कार कोठिया बंगले बैंक बैलेंस जो मर्जी बढ़ा ले इंसान, अंदर खेड़ा ना होए तो दिन ब दिन सुकदा ही जाता। बाहर दियां कोई भी काम नहीं आती। साडी जिंदगी का देखो, असी कोई पूछे ना सब तो भैड़ा पीरियड साडी जिंदगी का किहड़ा हुंदा, समा भैड़ा किहड़ा हुंदा। हुण आम जो पुछो दी भैड़ा समा असी सोचते हैं जी वो हुंदा जो कोई साडा नुकसान हो जाए, वो भैड़ा समा है। कोई साडी बीमारी आ जाए, भैड़ा समा। कोई साडे तो विछड़ जाए, भैड़ा समा। या कोई भी ऐसी अनहोनी घटना साडे नाल वापर जाए, भैड़ा समा है। नहीं है, भैड़ा समा नहीं है। भैड़ा समा वो होंदा है जदों इस घटना तो बाद असी डिप्रैशन दे विच जांदे हां, साडे अंदर लो फीलिंग आती है, साडे अंदर एक उत्साह घटदा है ना। नुकसान हो जाना भैड़ा समा नहीं है। नुकसान तो बाद जिहड़ा साडे अंदर वो फीलिंग है ना, जिहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਮੂਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਡ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤਨੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਇਤਨਾ ਭੈੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਟ ਦੇ 60,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਵਲ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਬਸੰਤ ਦਾ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਝੜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਕੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਵਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਸੰਤ ਚੜੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਕਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਜਿਨਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਸੇ ਅਹਰਨ ਫਿਰੇ ਜਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਲ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖੇੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਸਾਜਣ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਹਰ ਸਾਜਣ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਵਿਸਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੈ ਹੀ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਗੁਣ ਗਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਅਨੰਤ ਕਸਮ ਕੇ ਪਾਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਛੜਨਾ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ। ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਪਕ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਧੋ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿਪਕ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਥਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਲੱਗ ਮਾਖੀ ਪਚੇ ਪਚਾਏ। ਜਰਾ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੜ ਤੇ ਬੈਠਦੀ, ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰ ਪੰਖ ਔਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਨੀਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
गुरमुख माया विच उदासी, बड़ी सानू टैकनीक गुरु साहब दसदे ने। पुत्र कलत्र ना संग धना, हर अविनाशी ओ। जिस टाइम ए चिपक गया माया दे नाल, ओ अंदरों गुण चले गए ना, उदों कोई भी उदी मददगार नहीं होता। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन अगर वो उस टाइम कोई मदद कर सकता है तो वह केवल तो केवल इनर क्वालिटीज़ जिहड़ियां मदद करती है, और बाहरला कोई बंदा मदद नहीं कर सकता। जो इनर क्वालिटीज़ नहीं है ना, जिन्होंने कहते हैं जह मात पिता सुत मीत ना भाई, महा मन उहा नाम तेरो संग साई, जह मां बयान दूत जम दिलदे तै केवल नाम संग तेरे। वो मात पिता कई ऐसी सिचुएशन, साडा बच्चा बाहर बैठा है, की काम आएगा वो क्वालिटी। साड़ी इत्थे कोई सिचुएशन ऐसी फस गई है, चाहते हुए भी कोई नहीं मदद कर सकता जब तक इनर क्वालिटी नहीं। हुण ये सारे उस जीवन की उस अवस्था की गल की जा रही जिहड़ी कि शाखा तो मूल तो टुटिया। पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे मोह। पलच पलच का मतलब होंदा खप खप के, खप खप के वो एक झूठे धंधे मोह दे विच फसिया। जिन्हों असीं कहंदे ना माया दे विच, जदों असीं कई बारी सानूं लगदा कि कोई बड़ा आम तौर पर क्वेश्चन होंदा कि जिहड़ी माया, जिन्हां कोल पैसा धंधा, जिन्हां कोल बहुत ज़्यादा, जिन्हें बेईमानी ज़्यादा, जिन्हां कोल पैसा ज़्यादा होंदा, बड़ा आम क्वेश्चन है उन्होंने को तो बड़ी साडा क्राइटेरिया ही है, साडी देखण दी जिहड़ी अख है ना, वो तोल मोल उत्थे ही करते हैं असीं कि इहदे कोल सुख आराम किन्ने ने, इहदे कोल लग्जरी किन्नी है, इहदे कोल कंफर्ट किन्ने ने, इहदे कोल पैसा किन्ना है। साडे वास्ते जिहड़ी चंगे और मंदे दी, सुख और दुख की डेफिनेशन ही है। पर गुरु साहब कहते हैं माई माया छल तृण की अगन मेघ की छाया, गोविंद नाम बिन जल हड़। तृण की अगर होंगी है, जिस तरह तीले होंगे ना, तीले छल किनों कहते हैं, माई माया छल। बड़ी कमाल दी एग्जाम्पल्स है गुरबाणी की। कहते तीलिया नूं अग लाओ ना, जो वो अग के भांबड़ एकदम बलते, ऐसा लगता कि वाह वाह बड़ी तेज आके, लेकिन कुछ ही सेकंडा बाद बुझ जाती, खत्म। तृण की अगन मेघ की छाया, मेघ की जो छाया आती कहते वाह वाह मौसम बड़ा वधिया हो गया, एक मिनट बाद धुप निकल आती है। गोविंद नाम बिन जल हड़, जल का हड़ जो आते कहते बड़ा पानी पानी हो गया, मिनटा च उतर भी जाता। सो कुछ बस मोमेंटरी, जितनियां भी चीज़ें है माई माया छल, छल सिर्फ मोमेंटरी है, परमानेंट नहीं। पलच पलच सगली मुई झूठे धंधे मोह। खप खप के इन्हां विच ही सारी जिंदगी बसाख हो के वो मूल तो टुट के ये खपते रहे मोह दे विच। मोह का मतलब एक होंदा प्रेम प्यार और एक होंदा मोह, दोनों च फर्क है। मोह नूं बड़ा निंदिया गुरबाणी, प्रेम नूं जिहड़ा बड़ा सलाहिया। मोह होंदा एक चीज़ मेरी है, बस मैं जे परमात्मा कहीं रब दे नाल कहंदे रब मेरा, जो कहंदे ना मेरा रब, वो मोह अलग किस्म दा। जे कहे मैं रब दा, दोनों च फर्क है। मोह का मतलब होता है बस मेरा पुत्र, ए मेरा घर, ए मेरा परिवार, ए मेरी कौम, ए मेरा सब, बस मैं अपने तक ही, मेरा शरीर। प्रेम होता है बिल्कुल फ्लो करता, ओवरफ्लो सब वास्ते। कल ही असी मना के आए हैं गुरु अमरदास पातशाह जी का प्रकाश पुरब। एक जगह गल कर रहे थे 62 62 साल की उम्र के गुरु पातशाह
सच वाले पासे तुरे। मतलब कितने साडे कोल एग्जाम्पल ने हर एक तरह के गुरमत असी गुरबाणी नूं या अपने इतिहास नूं वाचीए ते हुण देखो उस असी पढ़िया सारा दिन सवेर तो लैके शाम तक मैसेज भी आते रहे गुरुद्वारियां दे विच इक्को पंक्ति बड़ी पढ़ी गई, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमत होए बनिया, बड़ी पढ़ी, बड़े मैसेज आए। हुण असी कहते भले अमरदास गुण तेरी उपमत, तेरे गुण तो तू ही जान, सानू कोई लेना देना नहीं है। गुरबाणी कहती जैसा सेवे तैसो होए, जिहो जिहा तू सेवेगा उहो जिहा हो जाएगा, पर असी वो गुण एक भी नहीं लै पाए गुरु अमरदास जी। किहड़ी उम्र दे विच उन्होंने वो 22 साल वो गंगा स्नान जाते रहे, 22 साल। हुण देखो जिहड़ा बंदा 22 साल एक काम दे विच पिया होया ना, वो किन्ना उहदे च प्रपक्क होएगा, किन्नी उहदी शरधा भावना, किन्ना कुछ होएगा, किन्ना उहदे च पक्का होएगा कि हाँ भी यही सब कुछ है। लेकिन वो 22 साल इतने पक्के होने के बावजूद परंपरावादी नहीं बने। एक शब्द उन्होंने सुनिया, अपनी परंपरावां तोड़ के रख दी जो उन्होंने विचार तो की होगी ना, तो असीं मान नहीं सकते कि उन्होंने शब्द सुनिया तो बस शब्द सुन के तुर पे। उन्होंने विचार की होगी कि शब्द की किया है, किन्ने लिखिया, मीनिंग की है। जो उन्होंने वो शब्द सुनिया, वो अर्थ सुने होंगे, उन्होंने विचारिया होएगा, अपना जो ट्रेडिशन सी, अपनी जी सोच सी एकदम तोड़ दी कि नहीं यह गलत है। और साढ़े इत्थे जदों असीं गल करते हैं तो कहते तुसीं नवें जम्मे हो, तुहानूं ज़्यादा पता है, असीं पुरानी पुरातन मर्यादा एवं ही है, साढ़े असीं 10 साल तो इत्थे प्रैक्टिस चल रही है, फलानी जगह हो रही, तुसीं एवं ही है, तुसीं नवें आए हो। उन्होंने कभी विचार गुरबाणी के आधार पर, गुरमत के आधार पर नहीं करते। वो विचार करते साढ़े बाबे जी करते हैं, साढ़े प्रैक्टिस की होंदी है, साढ़े वडेरे वडेरे की करते सी, असीं की करते हैं बस। और 62 साल की उम्र के उन्होंने सच की इस पासे तुरे। 62 साल अज साढ़े देखो 60 साल की उम्र होंगी तो असीं रिटायर होकर बह जाने घर कि बस जी बड़े काम कर ले, होंगे बस आराम करना, असीं पोतरे पोतरियां संभालीए, और काम धंधे थोड़ा करने, खत्म हो गया। उन्होंने काम सिर्फ यही रहा कि घर के समान ले आइए, दुध पानी सब्जी जो लै गया वो इकट्ठा करिए, तो पोतरे पोतरे मोह, यह मोह है कि अपने घर को सांभा, अपने परिवार को देखा, अपने बच्चे पोतरे पोतरियां का साम करनी, बस होर बाहर देना मेरा कोई लेना देना नहीं। तो गुरबाणी कहते गुरमुख बुढ़े कदे ना, जिन अंतर सुरत ज्ञान, जे सुरत ज्ञान है ना फिर नहीं बुढ़ा होंदा। जे सुरत ज्ञान नहीं है तो 20-22-25 साल का जवान ही ऐसा लेटा होंदा आराम नाल, की करना जाके छड्डो। उसे 25-30 साल का जवान भी बुढ़ा है, तो जे सच वाल तुरया है ना कोई, भावें उसकी उम्र 60-70 साल है, तो वो फिर भी जवान। सो यह साढ़े वास्ते बड़े बड़े एग्जाम्पल है। 62 साल की उम्र के इस सच वाले पासे तुरते हैं, और अपन परंपरावां, अपन गल्लां जितनियां भी पई हुई सी, वो सब उन्होंने तोड़ के उस पासे तुरे। बाणी उचारी उन्होंने, आनंद साहब का पाठ असीं उन्होंने बाणी रोज ही पढ़ते। इकस हर के नाम बिन अगे लैया खो, सारे झूठे धंधे और इकस हर, एक हरि का नाम भाव गुण धारण किए बिना अगे तो भाव मरण तो बाद अगे नहीं, अगे तो बाद खोया जाता, पहले ही वो पहले ही खो लिया, वो पहले ही लुटिया गया, खत्म हो गया। जे असी जे किसी ने अगे का मतलब जे कोई किसी धर्म करम के काम के कहता जी मैं भेटा कर दी, तो भेटा के पिछों की भावना की है, इलाके में पता लग जाएगा इन्होंने इन्ना काम किया। भावना धर्म नहीं है, भावना वो है खोया गया, कुछ भी नहीं लभ्या, क्योंकि इकस नाम नहीं है, नाम भाव गुण नहीं आया अंदर। जे लंगर ला देता है, किते लंगर लाने के नाल बड़े बड़े पोस्टर बैनर नाल लाए ने, फलाने अज वालों लख लख बधाई, तो फलाने वो भावना है सी कि पोस्टर मेरे आते जाते पढ़ ले पहले कि कौन करवा रहा, वो पहले ही सब कुछ लुटिया गया, कुछ नहीं है। गुरबाणी कहती धर्म कर्म पाखंड जो जिसे दिसे तिन जम जागाती लुट है। जम जागाती होंगे ने जेडे टैक्स कलैक्टर होंगे ना, जो मान लो किसी ने जेब च पाया
थोड़े पैसे लैके गया, अगे टैक्स उन्हें ले लिया, पल्ले की रहा, कख नहीं, कहना यात्रा बड़ी की करके आए हैं, पल्ले कुछ नहीं, अपनी लोड़ पे। सो इसे करके जब गुरु साहब कहते कि जिहड़ी अगे लईए खो, जितना भी काम जो किया भी है ना, तो वह किसी अंदर गुण धारण नहीं किया, तो बाहरली दिखावट जिन्नी मर्जी कर कोई फर्क फायदा नहीं। दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोए। दयो भी भाव उस निरंकार प्रभु दे वास्ते क्या आया कि उसनू विसार के विगुचना, विगुचना बिल्कुल चूर मूर रहना, पिछोए विछड़ जाना। प्रभ बिन अवर न कोए, हर बिसरत तेरे गुण गलिया जिन्होंने कहते ना, हर बिसरत सदा खुआरी, वो खुआर ही होंदा है। ताको धोखा कहाँ व्यापे, जा को ओढ़ तुहारी। प्रीतम चरनी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। जो प्रीतम चरण तो भाव भी केवल ते केवल उस पद चिन्ह, उस राह, उस पैंडे ते चलन की गल की है। तो खा पीड़े फड़ के चलने की गल नहीं की, इस गुरमत दे सच दे राह ते चलने की। प्रीतम चरनी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। सोए होंदी है किसी दी चंगियाई। जिस तरह असी कोई इलाज कराना हो ना, साढ़े कोई प्रॉब्लम होए तो सानू कहते हैं फलानी जगह जो डॉक्टर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, बड़ा वधिया इलाज करता है, इसका एक्सपर्ट है, इसका माहिर है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਬੈਨਰ ਲਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾरों ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਸੋਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਦੀ ਸੋਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ दूर तक जी पहुंच, जी खुशबू है ना, वो सब जगह पहुंच जाती है। तो जी आप धक्के नाल तुसीं जिन्ने मर्जी करी जाओ, अंदर क्वालिटी नहीं है तो जिन्ना मर्जी करो, क्वालिटी है तो जरूर तुहाडी जिहड़ी है वो सो पहुंचेगी। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ ਗਈ। ਪੂਰਾ 12 ਮਾਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਸਾਰੀ 12 ਮਾਹ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਰੁੱਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। बाहर के किसी भी महीने किसी भी संग्राम का कोई जिक्र नहीं है, किसी भी संग्राम के नाल सिख दा लेना देना कोई नहीं। सारी अंदर की अवस्था, अंदर की रुत, अंदर की जिहड़ी है भावना, सारी उसकी गल की। अंदर का जिहड़ा 12 माह, अंदर किस रुत बदलती है। बाहर के बसंत 1 महीने 2 महीने का आना, तो अंदर का बसंत जिहड़े मर्जी महीने बना सकता। तो जे अंदर बसंत नहीं है, अंदर खेड़ा नहीं है, तो इस मन को बसंत की लगे ना सोए। ये मन जलिया दूजा दोए। हुण जितनी भी असी गल इनर क्वालिटी की करते हैं, पूरे सानू शब्द पिछले भी पढ़े हैं, असी यह भी पढ़िया, किते भी 12 माह दा विच किसी भी संग्राम या किसी भी बाहर के महीने का जिक्र नहीं है। पर सवाल तो पैदा होता ना कि भी फिर कित्थों यह चीज़ां आ गई कि असी किसी खास दिन पर जाके कोई कहना कि भाई साहब ये शब्द एक महीना सुनाओ, किस तरह आ गई। ये होर भी कई जगह गल्लां करते, बड़ा आम क्वेश्चन जिथे भी जाते हैं, एक क्वेश्चन आम होता कि ये गलत चीज़ां असीं कहते हैं भी ये चीज़ गलत हैगी है, ये कदों आ गई, ये कदों एंटर हो गई साडे अंदर, पता ही नहीं चलिया। पर अज सानू पता चल रहा है किस तरह एंटर हुई। अज कुछ महीने पहले एक खबर आई सी, सिख रैफरेंस लाइब्रेरी बनाई जा रही है। एक सिख रेफरेंस लाइब्रेरी सी जिहड़ी
जून 1984 जो दरबार साहब अटैक होया उस सिख रैफरेंस लाइब्रेरी कहने ने साड़ दिता गया, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उहदे साड़िया नहीं गया, उहदे जितना समान सी वो सारा ट्रक भर के लद के लैके गए, बाद में जला दिता गया। अंदर का जितना भी डॉकूमेंट सी वो सारे लैके चले गए, उतों की उत्थे रहा नहीं। लेकिन ले जाने तो बाद उन्होंने डॉकूमेंट जिहड़े ने उस लाइब्रेरी में अग ला दी, कह गया कि सब कुछ सड़ गया। वो कुछ वापस भी मिले कई साल के क्लेम तो बाद वापस मिले, वो लिस्ट भी आई है कि किहड़े पुरातन चीज़ां मौजूद सी, फिर वो दोबारा क्लेम किया जा रहा है। हुण नवी खबर कुछ दिन पहले आई सी कि सिख रैफरेंस लाइब्रेरी दोबारा बनाई जा रही है, लेकिन दरबार साहब नहीं बनेगी, दरबार साहब तो अलग किसी जगह पर बनेगी। और हुण कुछ दिन पहले की खबर है कि सिख इतिहास RSS दोबारा लिखेगी। दोनों खबरों को आपस में जोड़िए, दोनों खबरों ना, दोनों न्यूज़ में आईया वखरे वखरे टाइम से ने, दोनों न्यूज़ में वापस ही जोड़ के देखिए कि कौन इतिहास लिखेगा और उस इतिहास केड़ी लाइब्रेरी पे आएगा तो उन्होंने फिर कौन पढ़ेगा। हुण सानू पता चलेगा, पर चलता पाया कि जिहड़ी कहते हैं कि यह चीज़ां कदों आईयां, पहले भी हो चुका कई बार। अज सोशल मीडिया के थ्रू सानू खबर मिल रही, उदों मिलियां नहीं, उदों सामने आईयां नहीं, अंदरों अंदर होंदा रहा। अज साड़ी कुछ अवेयरनेस आई है या सोशल मीडिया, अज न्यूज़पेपर थोड़ा आई है खबर, या टीवी थोड़ा आई है, या कितने होर। तो दोनों न्यूज़ में मिला के देखिए असी कि हुण कौन वो जो इतिहास लिखा जाएगा, वो जो उत्थे रखा जाएगा, वो उस तरीके नाल लिखा जाएगा, वही भाषा लिखी जाएगी, वही उसकी शक्ल बनाई जाएगी, वो कि जो लगेगा ये बड़ा पुरातन है, ये साड़ी पुराना सोर्स है ने जी, ये साढ़े पुराने ग्रंथ है, यह साडा वो इतिहासक ग्रंथ है जी, यह पुरातन इतिहास है। यही इतिहास, यही पुरातन, यही चीज़ां आने वाले टाइम के बन जाएगियां, होर नवीं चीज़ां ऐड हो जाएगियां। फिर साढ़े अज तो कई अगली जनरेशन कहेगी पता नहीं कदों आ गया, साढ़े विच किस तरह आ गया, यही साढ़े नाल पहले होंदा रहा, लेकिन साड़ी अवेयरनेस नहीं सी तो अज हालात बन गए। सो ये सानू बड़ी अवेयर होने की जरूरत हैगी। विसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटै हर सोए, ये सुहावा तां है जे संत भेटै, भाव वो सच दे नाल भेट हो जाए, सच दे नाल मिलाप होए, वो मूल दे नाल जुड़िया होए। जे मूल दे नाल नहीं जुड़िया तो जदों कबीर साहब कहते हैं कबीर ऐसा बीज वो 12 मास फलंत, शीतल छाया गैर फल पंछी खेल कर, वो 12 महीने खिड़िया रहता है, फिर कोई खास रुत का इंतजार नहीं होता। तो जे नहीं है कहते हैं मन तन मोलियो अत अनूप, सुके ना ही छाव धूप, सगली रुत्ती हरिया होए, छाव होए धुप होए, खुशी होए खेड़ा होए, दुख होए सुख होए, जो नर दुख में दुख नहीं माने। फिर जितनी भी है बारों तपत आती है ना, कहता मैं मनता नहीं। असी पहले जिक्र किया कि साढ़े पुरातन सिखा ने कितनी भी औकड़, कितनी भी मुसीबत, कितना भी कुछ आया, उन्होंने मनिया नहीं। बस जो नर दुख में दुख नहीं मन है, मैं नहीं मानता, सुख सने यार भै नहीं जाके कंचन माटी। सो जितनी भी औकड़ा, जितनी भी मुसीबत आई, उन्होंने मनिया नहीं, और फिर खेड़ा आ गया, फिर बसंत आई। लेकिन हुण वक्त असी साढ़े ते आया कि असी जितना भी है बाहरों तपत आ रही है, जितना भी सुकेवा सानू नजर आ रहा है, इस सुकेवे दे विच जे असी मूल नाल जुड़े रहे, जे असी गुरमत दे नाल जुड़े रहे, फिर भावें कोई भी आए, कोई भी संस्था आए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आए, कोई भी टाकरा आए, कोई भी वड्डे तो वड्डा दुश्मन आए, असी उस मूल नाल जे जुड़े रहे ना, फिर साडा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जे उत्थों वो मूल तो टुट गए तो फिर बेसाख हो गए। तो गुरु साहब फिर कहते हैं विसाख धीरन क्यों वाढ़िया, जिन्ना प्रेम जे वो वड्डे गए ना असी मूल तो, फिर सानू कोई नहीं बचा सकता, भावें अंदर दा भावें बाहर दा। सो यह पूरे शब्द के विचार विसाख के महीने की की। हुण अगले महीने क्योंकि जेठ का महीना है, की लफ्ज़ों का गुरु साहब ने वो कमाल किया, जिस तरह अज विसाख के महीने पढ़े। हुण अगली विचार अगले महीने असी करांगे अगले प्रोग्राम के। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।